ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مولوی کی پردے دار بیٹی روز گلی سے گزرتی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے عشق ہو گیا تھا۔ یوں میں روز اس کے گزرنے پر اسے سلام کرتا، پر وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ ایک دن رات کے 3 بجے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ دروازے پر مولوی کی بیٹی کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی، ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، مدد کریں۔ میں بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن اس نے میرے اندر آتے ہی گھر کا دروازہ بند کر لیا اور بولی، روز رات خواب میں میرا تم سے نکاح ہوتا ہے، اب تم میرے شوہر ہو۔ میرے ہوش فنا ہو گئے جب اس نے میری باطن کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے والدین بوڑھے تھے اور چھوٹی بہن جوان۔ وہ بمشکل ایم اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کے سلسلے میں گھر سے دور اپنے ایک دوست کے ساتھ کرائے کی ایک بیٹھک میں رہتے تھے۔ بیٹھک سے باہر ایک بات تھا، وہ دونوں اسے استعمال کرتے تھے۔ کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا سلنڈر کا چولہا رکھا ہوا تھا اور وہ دونوں باری باری اس پہ کھانا پکا لیتے تھے۔ پاس ایک ہوٹل تھا، کبھی نہ پکا سکتے تو اس ہوٹل سے جا کر لے آتے تھے۔ باطن نے اپنے گھر بھی پیسے بھیجنے ہوتے تھے، اس لیے بہت بچت سے پیسے خرچ کرتا تھا۔ اوپر سے مالک مکان بھی بہت کھڑوس سا تھا، جو عین پہلی تاریخ کو کرایہ لینے آ جاتا تھا، ورنہ بہت باتیں سنا کر جاتا۔ فالتو بجلی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنے دیتا تھا، غرض اس نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ باطن کبھی کبھی رو پڑتا تھا۔ اس نے شام کو ایک اکیڈمی جوائن کر لی اور 2 گھنٹے ادھر لگا کر آ جاتا تھا۔ اس کا اکیلے میں دل گھبراتا تو بیٹھک کی کھڑکی کھول کر بیٹھ جاتا اور گلی سے گزرنے والوں کو دیکھتا رہتا۔ اس کا ساتھی لڑکے کی دوسرے شہر ٹرانسفر ہو گئی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب باطن اور تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ 2 جگہ نوکری کرتا تھا، مگر پھر بھی واپس آ کر خود ہی اپنے کپڑے دھونے اور پھر استری کرنے کا کام اسی کے ذمہ تھا۔ کپڑے بھی چند جوڑے تھے، وہ بھی وہ لنڈے بازار سے خرید کر لایا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے اس سے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی اکیڈمی کی نوکری بھی چلی گئی، کیونکہ وہ بند کر دی گئی تھی۔ اب اس نے گلی کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی بات چیت شروع کی کہ کوئی اسے ٹیوشن پڑھانا چاہے تو وہ بہت مناسب فیس میں پڑھا دے گا، مگر وہ جس علاقے میں رہائش پذیر تھا وہاں زیادہ تر غریب طبقہ رہتا تھا، جن کو اپنے بچوں کی پڑھائی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کمانے پر لگا دیا جائے۔ چند بچے آئے بھی، مگر وہ پڑھتے کم اور شرارتیں زیادہ کرتے تھے اور فیس بھی برائے نام ہی دیتے تھے۔ تو مالک مکان بھی ان کے شور شرابے پر اعتراض کرتا تھا، کیونکہ وہ ساتھ ہی پورشن میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، کبھی وقت ملے تو وہ نماز پڑھنے مسجد چلا جاتا۔ اس مسجد کے مولوی صاحب اس سے بہت خوش ہوتے اور اسے پاس بٹھا کر گپ شپ لگاتے اور کبھی شام کی چائے بھی اسے پلا دیتے تھے۔ آج کل وہ شام کو فارغ ہوتا تھا اور اس نوکری سے بہتر نوکری کے لیے سب کو کہتا پھرتا تھا۔ اکثر شام کو مولوی صاحب کی بیٹی نقاب اوڑھے صرف اس کی حسین آنکھیں نظر آتی تھیں، روز اس کی بیٹھک کے آگے سے گزرتی تھی، اور جب سے باطن نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی وہ اس کی خوبصورت آنکھوں کا دیوانہ بن گیا تھا۔ ویسے بھی اسے خوبصورت آنکھیں بہت پسند ہوتی تھیں۔ وہ ماں سے اکثر کہتا رہتا تھا کہ ماما میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈنا جس کی آنکھیں خوبصورت ہوں۔ بہن اسے چھیڑتے ہوئے کہتی، ناک بے شک موٹا ہو، بڑے بڑے دانت ہوں، موٹے موٹے ہونٹ ہوں، بس آنکھیں خوبصورت ہوں تو گزارا چل سکتا ہے۔ باطن اسے جواب میں کہتا، بس اگر اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو پھر باقی جیسی بھی ہو قابل قبول ہے، چاہے لولی لنگڑی ہی کیوں نہ ہو۔ بہن استغفر اللہ کہتے ہوئے کہتی، بھائی کیا ہو گیا ہے، اتنا کریز خوبصورت آنکھوں کا۔ باطن کی ماں بہت نیک اور اچھی فطرت کی مالکہ تھی۔ اپنے دونوں بچوں کو جس مشکل سے اس نے پڑھایا لکھایا یہ وہی جانتی تھی۔ پڑوسن اسے کسی فیکٹری کا مال سیدھی سیدھی لائنیں لگانے والے کپڑے لا دیتی، بیڈ شیٹ وغیرہ اجرت پر سیتی اور بہت کم معاوضہ ملتا، مگر پھر بھی محنت کرتی۔ اب شوہر ریٹائر ہو گیا تھا، سرکاری ملازم تھا، پینشن آتی تھی۔ ایک کلرک کی پینشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اب اس کے دونوں بچے جوان تھے، ان کی شادیاں کرنی تھی۔ بیٹی کا رشتہ پڑوس سے آیا تھا اور وہ بیٹے کو بلانا چاہتی تھی، مگر مالک اسے چھٹی نہیں دے رہا تھا۔ پرائیویٹ نوکری تھی، یہ بھی نوکری اسے کافی تگ و دو کے بعد ملی تھی۔
वो भी इसे घर से दूर रहना पड़ रहा था। गुर्बत की वजह से दोनों खानदान सादगी से निकाह करना चाहते थे। भाई की शिरकत भी ज़रूरी थी, मगर बातें ने बहुत मजबूर दिल से माँ को कह दिया था कि इन लोगों को भी मेरी मजबूरी का एहसास है, क्योंकि वो लोग भी उनके पुराने मोहल्लेदार थे और इनके हालात भी उन्हें जैसे ही थे। इसने उनसे माजरत करके सादगी से मेरी बहन को रुखसत कर दें और फिर आप लोग वो घर छोड़कर मेरे पास आ जाए। वो घर भी वैसे भी उनका किराए का ही था। होने वाले बहनोई से उसकी दोस्ती भी थी और उसने तसल्ली दी थी कि मेरे अब वो वालदैन जैसे हैं, तुम इधर की फिक्र ना करो, मैं उनकी देखभाल करूँगा और अगर उन्हें शिफ्ट भी होना हुआ तो मैं उन्हें करवा दूँगा और निकाह के बाद हम दोनों तुमसे मिलने आएंगे। वो रोने लगा कि कितनी बेबसी थी। उसकी नौकरी भी ऐसी थी कि उसे कैश पर बैठना पड़ता था और वो ईमानदार था। इलेक्ट्रिक की एक बहुत बड़ी शॉप थी। इसकी दूसरी की निस्बत तनख्वाह भी थोड़ी इसीलिए उसने ज़्यादा रखी थी कि इसका काम कैश पर बैठना था और रोज़ की सेल बैंक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती थी। एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता था और फिर उसे गिनना भी पड़ता था। बैंक वाले भी अब उस पर भरोसा करने लगे थे कि जब बातिन साहब पैसे गिनते हैं तो हमें दोबारा गिनने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अगर कोई और गिने तो फिर हमें गिनने पड़ते हैं। ये जब कैश पर होता है तो मालिक बेफिक्रा होता है। जब ये कैश पर किसी वजह से ना हो तो मालिक खुद बैठता था, अपने बेटे को भी नहीं बिठाता था। बहन की शादी के लिए बातन ने एक बार सोचा था कि मेरे बगैर उसका काम नहीं चलता, वो मसले में पड़ जाता है, तो क्यों ना उसे ब्लैकमेल करूं कि अगर आप मुझे बहन की शादी पर छुट्टी नहीं देंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो मालिक ने उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया और बोला, अपना हिसाब किताब करो और निकलो। फिर बातन ने बहुत माफ़िया मांगी और मिन्नतें तरले किए तो उसने वापस उसे जॉब पर रख दिया और सज़ा के तौर पर कभी न छुट्टी लेने की शर्त रख दी, जो बातन ने बहुत मजबूरी में कबूल कर ली। अब बातन फंस गया था, न छुट्टी ले सकता था न जा सकता था। वो पछता रहा था कि जितनी मिन्नतें तरले उसे नौकरी वापस लेने पर करने पड़े हैं, इतने ही वो उसे धमकी दे बगैर बहन की शादी के लिए छुट्टी मांगने के लिए कर लेता तो शायद मालिक को रहम आ जाता। अब तो वो उससे बहुत गुस्सा दिला चुका था और अब वो बहन की शादी का जिक्र तक सुनने को तैयार न था। जिद में आ चुका था और अब वो छुट्टी का जिक्र तक नहीं कर सकता था। बहुत बुरी तरह फंस चुका था। इसके घर वाले अब उसे झूठी तसल्लियाँ दे रहे थे। 2 दिन बाकी थे निकाह में और वो उदास बैठा था, अपनी बेबस जिंदगी पर दुखी हो रहा था। पहले मालिक इससे बड़ी अच्छी तरह बातचीत करता था, अब तो वो इससे सीधे मुंह बात भी ना करता था, बल्कि अब उस पर गरजने बरसने भी लगा था, जैसे वो दूसरों पर बरसता रहता था। उसे बहन के इस अहम दिन में जाए बगैर रहा भी नहीं जा रहा था। अपनी बेबस जिंदगी पर रोना भी आ रहा था। मालिक भी बहुत खड़ूस मिला था। वो काफ़ी देर हिचकियों से रोता रहा। क्या फ़ायदा ऐसे भाई होने का कि वो बहन को एक ही शहर में होते हुए अपने हाथों से रुखसत भी न कर सके। बहन भी उसकी बातें सुनकर फ़ोन पर रो पड़ी थी। माँ बाप की आवाज़ भी भरा गई थी, मगर वो उसे हौसला देते हुए खुद भी हौसला खो रहे थे। वो मस्जिद चला गया, दिल बहुत उदास था। जब मौलवी साहब ने उसे देखा तो पूछा कि क्या तबीयत ख़राब है, तो वो पहले ही भरा बैठा था। उसे भी दिल का हाल सुनाने के लिए किसी कंधे की सख्त ज़रूरत थी। उसने उन्हें सारा अहवाल कह सुनाया तो वो बोले, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद कर भी नहीं सकता सवाए झूठी तसल्लियों के। चलो मेरे साथ, तुम्हें आज अपने घर लेकर चलता हूँ, यूँ खाना खिलाता हूँ। वो इनकार करता रहा, मगर वो ना माने और उसे ज़बरदस्ती घर ले गए। उसका कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी ना था। मौलवी साहब ने उसे इज्जत से कमरे के साथ एक छोटे से लाउंज में बिठाया। उन्होंने उसे बहुत दिलासे दिए और कोई वक्त होता तो वो यहाँ आने पर बहुत खुशी महसूस करता, मगर अभी उसका दिल गम से लबरेज था। उसे उनके घर आकर कदरे सुकून सा मिला। मौलवी साहब की बीवी भी बहुत अच्छी थी। उससे एक माँ की तरह हमदर्दी कर रही थी कि उसे अपनी माँ भी याद आने लगी। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया। सुरख लोबिया पका हुआ था, जो उसकी पसंदीदा डिश थी और काफ़ी अच्छा मज़ेदार भी बना हुआ था। उसने बामुश्किल खाना खाया। वो पूछने लगे कि बेटा ये खा लोगे कि कुछ और बना लें, तो वो झट से बोला था, नहीं सर, ये तो मेरी बहुत फेवरेट डिश है और पका हुआ भी बहुत मज़ेदार है। वो बड़े फ़ख्र से बताने लगे कि ये उनकी बेटी नैयरा ने पकाया है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब जब भी कभी पका करेगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलवा लिया करूँगा। और फिर उससे उन्होंने फ़ोन नंबर भी लिया और फिर उन्होंने चाय पिलाई।
وہ کافی بہتر ہو گیا اور دل کو بھی سکون مل گیا۔ جب انہوں نے نیرہ کہا تو اسے اس کا نام بھی پتہ چل گیا اور اس کا دل خوش ہو گیا کہ چلو اوپر والا خود ہی سبب بنا رہا ہے۔ اب وہ جلد ہی ماں سے بات کر کے نیرہ کے رشتے کی بات کرے گا۔ مولوی صاحب بھی اس کے گھر والوں کے بارے میں ساری تفصیل پوچھ رہے تھے۔ اسے بھی لگنے لگا تھا کہ وہ اسے پوری مسجد کے لوگوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے، اور اب گھر بھی لے آئے تھے۔ چائے پی کر اسے سکون ملا۔ وقت دیکھا تو 10:10 ہو چکے تھے۔ مالک مکان نے 10 بجے گیٹ لاک کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ پھر باہر ہی رہو گے، اور گیٹ کی چابی بھی نہیں دی ہوئی تھی کہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور اس کی بیٹھک کا دروازہ بھی اندر سے لاک ہوتا تھا۔ اس نے مالک سے کہا بھی تھا کہ اس کی بیٹھک کے دروازے کا لاک باہر سے لگوا دیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی مسئلہ نہ ہو۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولا تھا، ہاں، تاکہ کرایہ دار بہت آسانی سے باہر سے لوگ اندر بلا کر ہمارے گھر نقب لگاتا رہے۔ اتنا فری ہینڈ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ بیٹھک کا لاک بھی وہ اندر سے خود ہی لگاتا تھا اور چابی بھی پاس رکھتا تھا۔ بے دھڑک اس کی بیٹھک میں بغیر دستک دیے آ جاتا تھا۔ اب باطن ساری رات نہ اندر سے باہر جا سکتا تھا اور نہ ہی اندر آ سکتا تھا۔ صبح فجر کے وقت اٹھ کر کھول دیتا تھا۔ اس کی بیوی اچھی تھی، کبھی چوری اسے کچھ کھانے کو پکڑا جاتی تھی اور برتن بھی واپس لے جاتی تھی۔ اس نے مالک مکان کی بیوی سے درخواست کی تھی کہ کچھ بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، پلیز بیٹھک کے لاک کی چابی مجھے دے دیں، کبھی باہر سے لیٹ نائٹ کچھ لانا پڑے تو کیا کریں؟ تو اس کی بیوی نے خفیہ چابی اسے دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ 10:30 تک باہر نہ جانا، کیونکہ اس وقت کچی نیند میں ہوتے ہیں اور کھٹکے کی آواز سے بھی اٹھ کر تسلی کرتے ہیں، اور دروازہ بے آواز کھولنا۔ جب کمرہ چھوڑو تو مجھے چابی واپس کر دینا۔ اب وہ ڈرتا جھجکتا جب گھر پہنچا تو مالک مکان نے اسے اتنی باتیں سنائیں کہ اسے واقعے میں فوت شدہ نانی کی یاد دلا دی۔ اس نے اس پر احسان جتاتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے، 10 بجے کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس نے اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناس مار دیا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی اسے دیر تک غصہ چڑھا رہا۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ بڑی مشکل سے نیرہ کے گھر والوں تک رسائی ہو پائی تھی۔ گزرتے ہوئے بغیر نقاب کے ایک جھلک دیکھی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ مالک مکان نے جس طرح اسے باتیں سنائی تھیں اس کو نیند نہ آ رہی تھی۔ پرسوں بہن کا نکاح تھا، جس بہن کے ساتھ اس نے دوستوں کی طرح وقت گزارا تھا۔ دونوں بہن بھائی میں بہت پیار اور دوستی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اکٹھے ایک ہی اسکول میں پڑھتے آئے تھے، پھر کالج بھی ایک تھا۔ دونوں لنچ بھی اکٹھے کرتے تھے، زیادہ کسی سے دوستی بھی نہ رکھتے تھے کہ ان کا لنچ بھی کبھی پراٹھا اچار وغیرہ ہی ہوتا تھا، اور وہ دوسروں سے نظر بچا کر لنچ کرتے تھے کیونکہ وہ بمشکل اپنی کالج کی فیس پوری کر پاتے تھے۔ اپنی بکس بھی وہ لوگ پرانی لیتے تھے، کپڑے بھی لنڈے کے پہنتے تھے، بسوں میں لوکل دھکے کھاتے جاتے تھے۔ اسی زندگی میں وہ بہت خوش تھے۔ پیدل بس اسٹاپ تک سفر کرنا، پھر بس سے اتر کر کالج تک پیدل سفر کرنا، تھکن کے باوجود وہ خوش رہتے تھے۔ اس کی بہن اس کے کپڑے دھوتی، استری کرتی اور کھانا بناتی تھی۔ وہ اس سے اپنے کپڑے استری کرنے سے منع کرتا تھا، مگر وہ چھپا کر موقع لگا کر جلدی سے کر کے رکھ دیتی۔ اسے خیال ہوتا کہ بہن سارے گھر کے کام کر کے کالج جاتی ہے تاکہ ماں نے سلائی کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ فجر کی اذان سے بھی پہلے صبح اٹھ جاتی تھی اور سب کے لیے ناشتہ بناتی، برتن دھوتی، اور بعض اوقات اگر سالن رات کو ختم ہو جاتا تو وہ صبح ہی جلدی سے پکا لیتی اور اکٹھا آٹا گوندھ لیتی۔ ماں باپ اٹھتے تو ناشتہ بنا ہوتا اور وہ کالج جانے کی تیاری کر رہی ہوتی۔ بعض اوقات تو اسے خود کا ناشتہ کرنے تک کی فرصت نہ ملتی تو وہ 1 یا 2 رسی پانی کے ساتھ کھا لیتی کہ چائے پینے کا وقت نہیں۔ آج وہی بہن جو سب کی اتنی خدمت کر کے جا رہی تھی، تو وہ اس کی شادی بھی صحیح طریقے سے نہ کر پایا تھا۔ اس کو جہیز کے نام پر چند چیزیں وہ لوگ دے سکے تھے۔ اس کے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، ان کو کچھ بھی لینے کی ہوس نہ تھی۔ وہ کہتے کہ آپ لوگوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ مجھے معاف کرنا پیاری بہنا، تمہارا بھائی جوان توانا ہونے کے باوجود اتنا نہ کما سکا کہ جہیز ہی تمہیں دے سکوں۔ تمہارا بھائی اتنا بد نصیب ہے کہ تمہیں رخصت کرنے بھی نہیں آ سکتا۔ پرائے لوگ تمہاری شادی میں شرکت کریں گے اور وہ تمہارے نکاح کے مقدس چھوارے کھا سکیں گے، مگر بھائی اس ذائقے سے محروم رہے گا۔ وہ ہچکیوں سے روتا تڑپتا فریاد کرتا سو گیا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا۔ بہت گھبرایا اور تیزی سے تیار ہو کر
हवास बाख्ता सा जॉब पर पहुंचा तो बहुत डरा हुआ था कि बॉस तो बहुत नाराज़ हो जाएगा। तो वो डरा डरा सा बॉस के कैबिन में गया और जाते साथ ही मिन्नत भरे लहजे में बोला, सर दरअसल रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं। बॉस ने हाथ के इशारे से उसे शॉप से बाहर आने का इशारा किया। वो कुछ ना समझते हुए पीछे चल पड़ा तो बॉस ने एक आदमी से उसे मिलवाया और बोला, इसके साथ जाओ और इसे अपने घर का रास्ता बताते जाना। बातिन कुछ ना समझा तो उसे बोला कि माना कि तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था, मगर बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मैंने तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए ये जहेज़ का सामान से भरा ट्रक इनाम में दिया है और ये कुछ रकम है जिससे तुम उनके खाने पीने का अच्छा सा इंतज़ाम करना। और तुम्हें खुली छुट्टी है, हफ्ता 10 दिन जितनी चाहे छुट्टी करके आओ। वैसे भी मैं उम्रे पर जा रहा हूँ और दुकान बंद रहेगी। बातिन ने रोते हुए कहा कि सर ये सब बहुत ज़्यादा है। वो बोला, नहीं कोई ज़्यादा नहीं। बातिन ने बताया कि इसकी बहन के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उनको जहेज़ नहीं चाहिए। बॉस बोला, मगर अब तो ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ख़रीद चुका हूँ। बातिन बहुत शुक्रिया अदा करते हुए बोला, सर बहुत शुक्रिया, बस छुट्टी ही मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होता। इसके बॉस ने कहा, अभी तुम्हें मैं खुद फ़ोन करके बुलाऊंगा और बताऊंगा कि मैं कब वापस आ रहा हूँ, तब तुम वापस आना। बातिन ने रकम का लफाफा उसे वापस करते हुए कहा कि सर फिर इसे रहने दें, मगर वो ना माना। इसे खर्च करो और फिर मैं इसे थोड़ा थोड़ा तनख्वाह में से काटता रहूँगा। मैं वाकई शायद तुम्हें ना जाने देता बहन की शादी में, मगर मैंने बहुत सोचा कि मुझे उम्रे पर जाना चाहिए। किसी बहन को भाई के साए के बगैर रुखसत होना चाहिए क्या? मैं भी किसी का भाई हूँ। मैं तो ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी में शिरकत न करता। मैं तो अमेरिका से छुट्टी लेकर आ गया था और मेरे हाथों से क्या जुल्म हो रहा है। क्या मेरी इबादत, मेरे उम्रे कबूल होंगे? तभी मुझे शर्म आई और मैंने शादी पैकेज वालों को फ़ोन किया और कहा कि इस वक्त तुम लोगों के पास जो भी जहेज़ पैकेज मौजूद है वो फुल ट्रक भर कर मुझे भेज दो। अब मुझे तुम मज़ीद शर्मिंदा न करो। मैं अपने रवैये की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो आटे में नमक के बराबर है और तुम्हारी ईमानदारी की तो कीमत ही नहीं चुकाई जा सकती। जितने भी मैंने पहले लोग इस काम पर रखे वो ज़्यादातर घपले करने वाले थे। उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया, इसलिए मैं इतना सख्त दिल हो गया था कि मैं उनके साथ बहुत अच्छा था। मुझे अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है। तुम्हें जो दिया उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अगर तुम वापस भी करोगे तो फालतू पड़े रहेंगे और अगर ना करोगे तो परेशानी में नहीं पड़ोगे और मुझे सवाब मिल सकेगा। दरअसल हम अमीर लोग समझते हैं कि अल्लाह पाक ने जो कुछ हमें दिया है वो सब हमारा है, लेकिन ये नहीं समझते कि उसने तुम्हें गरीबों का हिस्सा भी दिया है ताकि तुम नेकियां कमा सको। ये इसका तुम पर ख़ास करम होता है कि वो तुम्हारी नेकियां बढ़ाना चाहता है, वरना वो खुद भी तो दे सकता है। वो देख कर भी आजमाता है और ले कर भी आजमाता है कि भला बंदा मेरा किस हाल में मेरा शुक्रगुजार होता है। क्या जब मैं उसे देता हूँ तब तो वो बहुत खुश होता है और जब मैं उससे लेता हूँ तो क्या फिर भी वो मेरा शुक्रगुजार बनता है या गिले शिकवे करके नाशुक्री करता है कि उससे कुछ नहीं मिला। हालांकि जब अमीर गरीबों को देता है तो अल्लाह पाक खुश होकर उसे और ज़्यादा नवाजता है, लेकिन जब उससे लेते हैं या गुर्बत में रखते हैं तो बजाय अमीरों को देकर अल्लाह पाक से शिकवे करना कि उन्हें इतना ज़्यादा दिया और हमें महरूम रखा, तो ये उनकी नाशुक्री के ज़मरे में आता है। और जो कोई गरीब रहता है मगर फिर भी इसी हालत में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता रहता है और सब्र करता है और कहता है कि ए अल्लाह तू मुझे जिस हाल में भी रखे तो मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। तो जब क़यामत के रोज़ से सब्र करने वालों को इस कदर अजर मिलेगा कि वो सोचेंगे कि काश हम सारी ज़िंदगी सब्र ही करते रहते। मालिक बोला कि बातिन, अगर तुम मेरा भला चाहते हो तो इनकार मत करो और मेरी तरफ से अपनी बहन के लिए भाई का गिफ्ट समझकर कबूल कर लो और जल्दी जाओ, बहन इंतज़ार कर रही होगी। उन्हें मेरी तरफ से भी मुबारकबाद देना। बातिन ने अपने अब्बू को और बहनोई को फ़ोन करके सब अहवाल बता दिया कि अपने घर में जगह बनाओ, सामान आ रहा है। फिर बहन को फ़ोन किया तो वो फ़ोन पर ही धाड़े मार मार कर रोने लगी कि क्या वाकई मेरा भाई आ रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सवाए अपने भाई के। माँ बाप जब वो पहुँचा तो उसे देखकर गले लगाकर रोते हुए बोले, हमारा बेटा बस खाली ही आ जाता तब भी हमें कोई फ़र्क ना पड़ता। बहन तो रोते हुए बोली, भाई मैंने तुम्हारे आने की बहुत शिद्दत से दुआएं की थीं, देखो तुम आ गए। ऊपर वाले ने मुझे मायूस नहीं किया।
मैंने उससे अच्छी उम्मीद भी लगाई थी और साथ सब्र भी किया था कि जैसे तेरी रज़ा है मैं उसी पे राज़ी हूँ। देखो मेरा भाई आ गया। वो जज्बाती अंदाज में माँ बाप से पूछती फिर रही थी, क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? क्या वाकई मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है? भाई उसे गले लगाकर उसके सर को चूमते हुए बोला, बस अब रोना नहीं, थोड़े आंसू रुखसती के वक्त के लिए भी रहने दो। तो वो सामने खड़ा दुल्हा और उसके छोटे भाई को देखकर शर्मा कर अंदर चली गई। माँ ने कहा, भाई को कुछ खिला पिला, उसने सुबह का कुछ नहीं खाया पिया होगा। वो सब ट्रक से सामान उतार रहे थे जब बातिन की माँ ने बताया कि हम लोग मिलकर एक ही बड़ा घर ले रहे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन की सास एक तो वो बेवा है, फिर तुम भी दूर रहते हो, तो हम सब मिलकर रहेंगे तो फ़ायदा होगा। बातिन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और जब उन्होंने 2 गलियां छोड़कर घर बताया तो बातिन ने कहा कि ये सामान इस घर में ही उतरवाना है। मैं मालिक मकान को जानता हूँ, उससे बात करके आता हूँ। वो चल पड़ा और मालिक मकान से बात करके किराया भी अदा किया। उसने एक ऑफ़र भी दे दी कि उसने मकान के साथ ही एक दूध दही की शॉप बनाई हुई थी। वो बाहर मुल्क जा रहा था और वो कोड़ियों के दाम लगा के कारोबार दे रहा था। बातिन ने फ़ौरन उसकी ऑफ़र कबूल कर ली और रकम अदा करके स्टाम्प पेपर्स पे सब कुछ लिखवा लिया। दूसरे दिन तक ये लोग घर की सजावट, इसमें नया सामान वगैरह सेट करते रहे। सारा घर नए सामान से बहुत प्यारा लग रहा था। बातिन जो चीज़ें बहन को जहेज में देने के ख्वाब देखा करता था वो सब ऊपर वाले ने पूरे कर दिए थे और वो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा कर रहा था। उसे याद था उसकी बहन ने भी एमए किया हुआ था, मगर उसका शौहर एफए तक पढ़ा हुआ था। जब उसके लिए उसका रिश्ता आया तो माँ ने कहा, अरसे के वो लोग इधर ही रह रहे हैं, देखे बाले लोग हैं, क्या बुराई है, उनकी जहेज की भी डिमांड नहीं और कहाँ देंगे। बातिन को बहन की फिक्र थी कि वो क्या सोचेगी कि मैं एमए पढ़ी हुई हूँ और वो एफए तक पढ़ा हुआ है। जब भाई ने उसकी मर्जी पूछी तो वो दुख से बोली, भाई हमारे इस छोटे से गुर्बत भरे घर में किसी डॉक्टर इंजीनियर का रिश्ता तो आएगा नहीं। फिर वो लोग इस लिहाज से भी मुनासिब हैं कि वो हमारे घरेलू मुआशी हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। फिर ना वो कुछ खर्चा करने की इस्तात रखते हैं, ना हमारी इतनी पसली है, तो फिर वो शरीफ और अच्छे लोग भी हैं। भाई ने खुश होकर उसे दुआएं दी और आंसू पूंछता हुआ चल पड़ा और सोचने लगा कि उसकी बहन बहुत सब्र शुक्र वाली है। अगले दिन इसी घर में सादगी से निकाह कर दिया गया। उसे अगले दिन चंद करीबी लोगों को बुलाकर बातिन ने अपने खर्चे से वलीमा कर दिया और बहनोई को दूध दही की शॉप सौंप दी कि एक गार्ड की नौकरी से ज़्यादा ही कमा लोगे। कभी अबू बैठ जाया करेंगे, फालतू औकात में छोटे भाई को भी बिठा लिया करना। चंद दिन रहने और दुकान का सारा सिलसिला समझने के बाद बहनोई को सब समझा दिया कि किससे माल लेना है, कितने घरों में दूध लगा हुआ है, वो रोज़ पहुंचाना है। फिर उसे एक पुरानी बाइक खरीद कर दे दी और फिर मालिक वापस आ चुका था। उसको बातिन के सब घर वालों ने बारी बारी फ़ोन पर उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। बातिन ने इसके काम को और बहुत दिल लगाकर करने की कोशिश की। वापस आकर उसे इल्म हुआ कि मालिक मकान फोत हो गया था। उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने मालिक मकान की बीवी को बहुत अफसोस किया। वो रोते हुए बोली, हमारी औलाद न थी, मगर उन्होंने कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि मैं उदास होती तो वो मुझे तसल्ली ही देते थे। अब उनका भतीजा हमारे साथ रहता है कि उसने पसंद की शादी की तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, तो मैंने उसे और उसकी बीवी को पास रख लिया है। एक तो वो भी मजबूर थे और मैं भी अकेली। बातिन को उसने गेट की भी चाबी दे दी कि जब चाहे आ जाओ, तुम पर हमें एतबार है। मौलवी साहब उसे देखकर बहुत खुश हुए और बहन की शादी की मुबारकबाद दी। अब भी रोज़ नैरा बातिन के घर के आगे से गुजरती थी और बातिन उसके इंतज़ार में खिड़की में बैठ जाता था और वो सामने से गुजर जाती थी। नैरा के बारे में बातिन ने बहन को चुपके से बताया तो वो बहुत खुश हुई। उसको मौलवी साहब अब अक्सर घर ले जाने लगे थे। कभी लोबिया पकाते तो उसे घर बुलाकर खाना खिलाते और चाय पिलाते। नैरा चंद बार नकाब ओढ़े सलाम करके वापस चली जाती। मौलवी साहब ने बताया कि नैरा उनकी एक ही बेटी है। एक दिन रात के 3 बजे बातिन सो रहा था कि उसकी बैठक का दरवाज़ा खटका। बातिन घबरा कर उठा तो बाहर नैरा चिल्ला रही थी। उसने जल्दी से जब दरवाज़ा खोला तो सामने नैरा खड़ी हुई थी। वो रोते हुए बोली, मेरे अब्बा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, प्लीज़ जल्दी चलो, मेरी मदद करो। वो तेज़ी से उठा, कमरा लॉक किया और बातिन उसके साथ बिना सोचे समझे उसके घर पहुंचा तो उसकी रूह तब फना हुई कि उसने उसकी कलाई पकड़ कर कहा कि रोज़ ख्वाब में मेरा तुमसे निकाह होता है, अब तुम मेरे शौहर हो।
जब उसने उसकी कलाई पकड़ी तो सामने मौलवी साहब खड़े हुए थे। बातिन शर्म से पानी पानी हो गया। तो मौलवी साहब बोले, मेरी बेटी को नींद में चलने और बोलने की आदत है। वो घर के कमरे के दरवाजे खटखटा कर ऐसे बोलती रहती है कि मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है, मेरी मदद करो, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं बीमार हूँ और शायद 6 या 8 माह का मेहमान हूँ। इसको इल्म है और ये शौक़ में भी रहती है। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि मेरी बेटी से निकाह कर लो और मेरी बेटी और बीवी का सहारा बन जाओ, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। इस वक्त तुम्हें आते हुए शायद किसी ने देख लिया हो तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम्हें सुबह फजर के वक्त ही निकाह करना होगा, फिर तुम इधर ही रह सकते हो और मैं भी सुकून से मर सकूंगा। माँ ने बेटी को झंझोड़ा तो वो जैसे होश में आ गई और बातिन को अपने कमरे में पाकर हैरत से देखने लगी। तो माँ ने उसे जब सारी बात बताई तो वो रोते हुए बातिन से माफ़ी मांगने लगी। तो उसने उसे तसल्ली दी। सुबह फजर की नमाज के बाद सादगी से बातिन का निकाह हो गया। उसने सारी सिचुएशन बहन को मैसेज कर दी तो वो बहुत नाराज़ हुई कि उसने अकेले कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया। गर्ज वालदैन समेत सब ने उसे जीना मरना ख़त्म कर दिया। बातिन मौलवी साहब के घर शिफ्ट हो गया था। उनका वो घर अपना था। घर वालों ने बातिन से पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। खुद उनकी दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी थी। उन्होंने उसको और चीज़ों से भी बढ़ा दिया था। नईरा इससे बहुत माफ़िया मांगती कि उसकी वजह से उसके घर वाले छूट गए, मगर वो कहता, नहीं, हमारा मिलन शायद किस्मत में इसी तरह लिखा था। मौलवी साहब दिन ब दिन बीमार रहने लगे। नईरा बहुत रोती तो वो उसे तसल्ली देता, क्योंकि अब उम्मीद से थी। नईरा का बेटा पैदा हुआ तो ठीक 2 माह बाद मौलवी साहब चल बसे। नईरा पर बार बार बाप के गम से गशी के दौरे पड़ रहे थे। बातिन ने बहुत ज़्यादा इसकी केयर की तो वो संभलने लगी और बेटे की परवरिश में खो गई। बातिन ने जब घर वालों को बेटी की पैदाइश का मैसेज किया तो वो बोले, हम इस लड़की को कभी कबूल नहीं कर सकते जो ऐसी हरकत कर सकती है। न जाने वो किसका बच्चा है। तुम्हें एक सूरत में हम माफ़ कर सकते हैं कि तुम इसे तलाक देकर वापस घर आ जाओ और आकर दुकान संभाल लो। अब तुम्हें वहाँ नौकरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने घर वालों पर हैरान होता था कि वो इस बॉस की जॉब को कैसे छोड़ सकता है जिसने मुश्किल वक्त में उसे सहारा दिया और वो अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल हो सके। अब तो इसने नई जॉब दे दी थी और जो बहुत आसान भी थी, और कभी कभार वो लैपटॉप पर घर बैठे काम करता रहता था। जब चाहे छुट्टी कर सकता था। उसने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। मोबाइल और लैपटॉप सब फ्री दे दिया था और बाइक भी नया निकलवा दिया था। बॉस बातिन से कहता कि तुम मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुए हो। जब से तुम्हारी मदद की है मैं दिन रात तरक्की की तरफ गामजन हुआ हूँ और इसके टैलेंट से भी बहुत मुतासिर था कि वो अब इसका दायां बाजू बन चुका था और इसका काम बहुत मेहनत और लगन से करता था। अब तो बॉस उसे मुल्क से बाहर ले जाने लगा था। उसका बातिन के बगैर गुजारा न था। उसने अब उसे गाड़ी दे दी थी, बाहर मुल्क लेकर जाने लगा था। बेटा इसका बड़ा हो चुका था, वो स्कूल जाने के काबिल था। बातिन को ये दुख था कि सब ने उसे उसी वक्त ही फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया था और अब उसका बेटा 4 साल का हो चुका था और उसने बॉस के कहने पर उसके साथ अच्छी सोसाइटी में प्लॉट ख़रीद लिया तो और बॉस के साथ ऊपर नीचे कर किराए पर ले लिया। साथ बॉस और उसके घर की तामीर भी शुरू थी। अब वो अपनी गाड़ी में जाता आता था। नगीरा रोज़ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। वो BA तक पढ़ी हुई थी। अब वो गाड़ी चलानी भी सीख चुकी थी और बच्चे को खुद ही स्कूल से लेकर जाती और वापस लेकर आती थी। और अब अपने बेटे को बातिन के पुराने मोबाइल से अपने सास ससुर की तस्वीरें दिखाती कि ये तुम्हारे दादा और दादी हैं। उसकी बहन का बताती कि ये आपकी पुप्पो हैं। बातिन ने चुपके से बीवी को बताए बगैर वालदैन से मिलने गया तो वो उससे मिलकर बहुत खुश हुए और माँ ने बहुत प्यार किया और बाप ने कहा कि इस बुढ़ापे में एक आवारा लड़की के लिए अपनों को छोड़ रखा है। बहन ने भी यही अल्फाज दोहराए। बहनोई भी ऐसी ही बातें कर रहा था, मगर इसने बीवी को तलाक देने से इनकार कर दिया तो वो फिर से नाराज़ हो गए और वो दुखी होकर वापस आ गया। वहाँ उसकी बहन का देवर उसको कहने लगा कि भाई आप मेरा फ़ोन नंबर ले लें तो मैं आपको यहाँ की खैर खबर देता रहूँगा। बहन के 2 बच्चे हो चुके थे और वो लोग अब गुर्बत का शिकार होने लगे थे। नईरा हर माह बहाने से उनके पास जाती और चंद घरों में राशन तकसीम करती और साथ बच्चे को भी लेकर जाती। वो उन्हें दादी दादा कहता और बातिन की बहन को पुप्पो। वो हैरान होते तो वो कहती इसके पास ये रिश्ते मौजूद नहीं तो इस इलाके में भी लोगों की हेल्प के लिए आती हूँ, तो आप लोग इधर सबसे मुनासिब लगते हैं तो मुझे इधर आना अच्छा लगता है। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं। वो झट बोले,
नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो तुम्हारा आना अच्छा लगता है। तुम बहुत नेक बच्ची हो और हमेशा अपने बच्चे को साथ रखती हो, अच्छा करती हो। आजकल के दौर में बच्चों को मुलाजमों के हवाले नहीं करना चाहिए। गरीबों की हमदर्द हो और इधर काफ़ी देर से बैठी रहती हो, इधर खाती पीती हो और बच्चा भी इनसे मानूस होता जा रहा था। उसने बातों बातों में पूछा तो उसकी माँ ने वही बातें दोहरा दी। बहन भाई को याद करके रोने लगी और इसके बच्चे को इतना प्यार करती कि इसके भाई के बेटे की भी इतनी ही उम्र होगी। हमारी अम्मा बहुत ज़िद्दी हैं, बस इनके दिमाग में एक रिश्तेदार ने भर दिया कि वो लड़की ठीक नहीं है, तो बस हम सबको भी माँ ने धमकी दे दी कि जो मेरे बेटे को मिलेगा फ़ोन करेगा तो मैं कुछ खा कर मर जाऊंगी। एक बार छुरी से अपने आप को ज़ख्मी भी कर चुकी हैं। हम सबको भी भाई की जुदाई में मुसीबत में डाला हुआ है। नैयरा ने हर बार उनको समझाना शुरू कर दिया और वो कायल होने लगी। उसने कहा कि अब वो बहू आपकी इज्जत बन चुकी है, उसे कबूल करें ना करें, क्या पता वो बहुत शरीफ लड़की हो और शायद उससे आप कबूल करें तो वो आपकी बहुत खिदमतगार बहू साबित हो। बातिन की माँ बेटे और पोते के लिए तड़पने लगी और रोने लगी कि क्या पता मैं बीमार रहती हूँ, अपने पोते की शक्ल देख सकूंगी, मिल भी सकूंगी, बेटा मुझे माफ़ भी करेगा या नहीं। नैयरा बोली, क्यों नहीं करेगा, क्या पता वो भी यही चाहता हो कि कोई तीसरा फरीक आकर उनको मिलवाए। माँ लज्जाहत से बोली, तू इतनी नेक बच्ची है, अरसे से हमारे मसले संवार रही है, जब भी कोई मसला हो तुम भागी हमारी मदद करती हो, तुमसे ही उम्मीद है, हमारी बहू से मिलवाओ, बोलो हमें माफ़ कर दे, अब हम उसको बहू तस्लीम करते हैं। नैयरा रोने लगी और बोली, मैं ही वो बदनसीब आपकी बहू हूँ क्या। वो उठी और उसे थप्पड़ मारने लगी। बड़ी मुश्किल से बातिन की बहन ने छिड़वाया। वो उसे गालियाँ देते हुए बोली, इतना अरसा चुप क्यों रही, पहले क्यों ना बताया। और फिर उसे गले लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बातिन की बहन का देवर जो इस पल की खबर देता था, उसे इल्म हो चुका था कि नैयरा इधर जाती रहती है। उसे नैयरा पर फ़ख्र महसूस होता था। आज वो इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। जब उसे पता चला कि माँ ने नैयरा को कबूल कर लिया है तो वो बहुत खुश हुआ और इसी वक्त गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो माँ ने नैयरा को गले लगा रखा था। पीछे से बातिन जा पहुंचा तो बच्चा जल्दी से बोला, पापा, और आकर गोद में चढ़ गया। माँ ने बेटे को देखा तो माफ़ी के लिए हाथ जोड़ लिए। सब इससे माफ़ी मांगने लगे तो वो रोते हुए माँ के गले लग गया। बाप ने भी दूसरी तरफ से उसे गले लगाने की कोशिश की। बहन कदमों में बैठकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। सब रो रहे थे। बच्चा डर कर रोने लगा तो नैयरा के देवर ने उठा लिया और उसे बाहर ले गया। बहन का शौहर आया, उसने भी कहा, बातिन भाई मुझे माफ़ करना। बातिन बोला, बस अब एक सूरत है माफ़ी की कि आप सबको मेरे साथ शहर चल कर रहना होगा। नैयरा खुशी से बोली, आपके बेटे का घर बहुत बड़ा है। सास झट बोली, और हमारी नेक दिल बहू का दिल भी इतना ही बड़ा है। फिर उसे दुआएं देने लगी तो नैयरा के दिल में सुकून उतर आया और बातिन ने नैयरा का बहुत शुक्रिया अदा किया। सब उसके घर शिफ्ट हो चुके थे और बातिन ने बहन के बच्चों को भी अच्छे स्कूल में बेटे के साथ दाखिल करवा दिया। अब बातिन की माँ सबको कहती, मेरी बहू बहुत नेक है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।